Please answer me in chat so that I can move forward. Okay, correct. Okay, yes, Ujjwal Sharma has answered. Fine. I'm taking it yes as from all of you. Now I am moving forward. See, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. सो अगर लास्ट क्लास में आपने जो पढ़ा था उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी वो चैट में पूछ सकता है, और अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस इन दिस क्लास. ओके, लेट अस स्टार्ट. आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है. पावर अप्लाइड टू अ पार्टिकल varies with time as t equals to 3t square minus 2t plus 1. What? Where t is time in seconds, find the change in kinetic energy between time t equals to 2 seconds to t equals to 4 seconds. Right. So solve this question right now and share your answer with me in chat so that I can see who one of you is solving. I think all of you are solving it. Please continue. I have got one answer. It is 6 Joule. Durga, please recheck your answer. Consider time limit also. We have to we have to find out change in kinetic energy between t equal to 2 seconds to t equal to 4 seconds. 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में जितना चेंज ही काइनेटिक एनर्जी में आया, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. Tanmay has answered, Dhruvi has answered. Let us find out which answer is very correct. Sneha Patel, Raj Aryan, Ankit, Drishti, Nitish has answered. Fine. And Pooja has also answered. Let me wait for others also, because I think today we have 44 participants. So please answer quickly. Pooja has also answered. Pankaj, Yash Mohan. Okay. Let me explain it to you. Those who have got answer as 46 Joule got the right answer. Right? Because right answer is 46 Joule. And how did we get it? Let me explain it to you. Power varies as P equals to 3t square minus 2t plus 1. Here, power is equals to dw by dt, rate of change of doing work. So dw by dt can be written down as 3t square minus 2t plus 1 here, right? So after separating variables,
we would write down dw equals to 3t square minus 2t plus 1 equals to dt. Now we have to find out work done between t equal to 2 seconds to t equal to 4 seconds. So that would be given by us by the integrating the expression between t equal to 2 to t equal to 4. हम इसको इंटीग्रेट करते हैं dw को, और t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक जो हमारा एक्सप्रेशन है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, उसको इंटीग्रेट करते हैं तो 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब आ जाता है, आप सभी को पता होगा। माइनस 2t का इंटीग्रेशन माइनस t स्क्वायर आ जाता है, आप सभी को पता होगा। और प्लस 1 का इंटीग्रेशन t आ जाता है, जो कि हमारा आ गया है। और लिमिट है हमारी 2 से लेके 4 सेकेंड तक। ये थोड़ा क्लियर नहीं है बट इट इज 4 हियर। नाउ अपर लिमिट रिप्लेस करते हैं 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस करते हैं 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2, तीसरे हम क्यूब रख देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 52 माइनस 6 दैट वुड बिकम 46 क्यूब, राइट। तो आप सभी को अगर ये कुछ समझ आया तो प्लीज आंसर मी इन चैट एज यस, so that I can understand or I could know that all of you have got, please, okay। और जिसको समझ नहीं आया प्लीज आंसर मी, अदरवाइज स्पेसिफिकली क्या चीजों को समझ नहीं आई, so that we can move forward। ध्रुवी पटेल, सुनेह, वैष्णवी, तन्मय has answered, yes, अभिषेक, दृष्टि, विधि, okay, okay, Durga, Harsh, Vishnu, I am taking it as yes from all of you because none of you has answered me otherwise. Let us move to our next question. So हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व किया है, आगे चलते हैं। तो हमने इक्विलिब्रियम के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मुझे लगता है आप सभी को याद होगा। अगर इक्विलिब्रियम के बारे में कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। और let us solve one question about equilibrium. Question is this: potential energy of a conservative force is given by U equals to ax square minus bx. Sorry. Where x is the position of the object. Here, U is a function of potential energy which can be expressed in the term of x as ax square plus bx, where a and b are positive constants. दोनों positive constant है। Find the equilibrium position and discuss whether the equilibrium is stable, unstable or neutral. आपको equilibrium position find करनी है और बताना है कि ये स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी या न्यूट्रल होगी। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम एंड आल्सो फाइंड आउट वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। Start solving it and please share your answer in chat box with me so that I can find out कि आप सभी इसको solve करते हैं। Start solving on your notebook and share answer with me on chat.
Okay. Pooja Rathput has answered. Pooja also explain if it is stable or unstable. Ruby has also answered. Please find out the value of x for which it is stable or unstable. Position equals to b upon 2a. All of you are giving me the answer as stable, and many of you has given the position as b upon 2a. B upon 2a is equal stable. Adit, we also share the position at which that would be stable. Stable position 2a. Sharma has answered. Please answer. For x, Govind has also answered stable. B upon 2 stable. B upon 2a. Has answered fine. Very good. Okay. Many of you have got the answer B upon 2a as stable. So let you write. Yes, your answer was right. B upon 2a and that was stable. तो रिजल्ट आप सभी ने सोल्व कर लिया है. प्लीज जिन बच्चों को इसका सोल्यूशन नहीं समझ आया है वो मुझे चैट में पूछ सकते हैं. सो द सोल्यूशन और अदरवाइज आई showing the solution and the next question. क्योंकि आपको लगभग आ ही गया है and that was an easy one. और अगर किसी को इसका सोल्यूशन पूछना है प्लीज आंसर इन चैट so that I can show you the solution. Otherwise, I am moving to the next question. Okay, fine. Let me explain to you. Okay, voice is not important. That would be the net problem. Speed of net would be not good at any of. या तो मेरे एंड पर या आपके एंड पर नेट की स्पीड सही नहीं है, इससे वॉइस में थोड़ा दिक्कत आ रही है. तो that the thing we have to bear with. Voice is not clear. अभी आवाज क्लियर है? Is it clear now? Okay. Some of you have answered yes, some of you have answered no. So I think that would be a network issue on your end. आपके एंड पर या कोई issue है, इसकी वजह से वो क्लियर आ रही है और थोड़ा हमें देखना पड़ेगा. Okay, I am showing you the picture of the solution so that yes, here is the solution. Is it clear now? Solution दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है U equals to ax square minus bx. फाइन. U को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमें पता चलता है f इक्वल्स टू माइनस b बाई dx, जो कि बन जाता है माइनस, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मिलेगा 2ax minus b. That would be a very simple differentiation. तो आई थिंक ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो फोर्स होगा वो हमारा जीरो होगा. तो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो. माइनस 2ax minus b must be equal to 0. x would become as b. तो यहाँ पर
x equals to b upon 2a पर जो force होगा आपको पर that would be 0. It this equilibrium position will exist on x equal to b upon 2a. Now let us find out कि ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है. तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x d2 upon dx will come as 2a. और क्योंकि a हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है तो 2a will also be पॉजिटिव. तो हमारा जो सेकंड डिफरेंशिएशन है पॉजिटिव आता है. इट मींस potential energy at x equal to b upon 2a could be minimum होगी जिसकी वजह से ये हमारा x इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. आई थिंक यहाँ पर सभी हो गया होगा आपको. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. बढ़िया क्वेश्चन है और आपकी कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करने वाला क्वेश्चन है. अ कांस्टेंट पावर P is applied on a particle of mass m. मास m के पार्टिकल पर हमने कांस्टेंट पावर अप्लाई करी है. फाइंड काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. हमें इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. और इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है P is constant is the only information we have. तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम कैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ m and p and t as a function of time obviously. तो p, m और t के टर्म्स में हम इसकी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं आपको करना है. Solve this question right now on the notebook. Your answer with me in that. ये क्वेश्चन अभी आप अपने नोटबुक पे सोल्व करो और चैट में मेरे साथ अपना आंसर को शेयर करो सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि ऑल ऑफ यू आर सॉल्विंग इट. और जो इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं वो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या चीज उनको समझ नहीं आ रही, so that I can solve that properly. I think all of you are solving it. सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं. Let me see who one of you got the answer first. इसका आंसर सबसे पहले आता है और अगर आंसर नहीं आ रहा है और आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है and you are not be able to solve it, ask in chat box. Kinetic energy is PT. Very good. We have got first answer. Durga has answered. Rajajan has answered. Try to answer me in private chat so that I can tell you if your answer is correct or not. Twice
बेटा वॉइस जो है नेटवर्क इशू है एंड वी कैन नॉट डू मच अबाउट दिस। तो नेटवर्क इशू पे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू बेयर इट। v is root of 2p by n. Fine, let me see if that the right solution. Kinetic energy, Nitish has also answered. 2ft, Sunil Patel has answered velocity, 2pt by n or ft. See, there is no f. In terms of kinetic energy, v root 2pt by n and displacement root 8p by m t for 3 by 2. Okay, fine. Okay, many of you have got the answer. Let us find out if your answer is correct or not. Right. Yes. Power is dw by dt, which is very constant. So for constant power, Sneha has also answered. Good. Nikshita, Pooja, all of you has answered. Let us find out if your answer is correct or not. Whenever you share your answer with me, please share your answer in private chat so that I can tell you immediately कि आपका आंसर सही है गलत है. Otherwise, all of you will get the right answer at last, and maybe some of you will tell your answer by manipulating it. Right? So यहाँ पर हमारे पास work done would be equals to Pp plus K1 after integrating the power function. Power is constant, so integration of power with respect to T will give us Pp. इक्वल टू 0 पर वर्क डन हमारा 0 होगा, तो यहाँ पर K जो हमारा कांस्टेंट है वो हमारा 0 आ गया, और W will be equals to change in kinetic energy. हम kinetic energy 0 लेते हैं इनिशियल में, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है स्पेसिफिकली कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, देन वी टेक इट एज 0. सो वर्क डन बाय this would be equals to half mv square, which will also be the kinetic energy of the object. So kinetic energy would be equals to Pp. So all of you got the right answer about kinetic energy. Kinetic energy को half mv square पे put करेंगे तो v की वैल्यू डेफिनेटली हमें मिल जाएगी 2p square root 2p by m into t. राइट, तो ये भी आंसर आप सही का बिल्कुल करेक्ट आंसर था. सर वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, प्लीज कनेक्ट अगेन और चेंज डिवाइस. सी बेटा वॉइस क्लियर नहीं है, इट मींस देयर इज a network issue and we cannot do much about it. Okay, let me reconnect myself so that देख लेते हैं. मैं स्क्रीन okay, fine. I got it. You have to chat me and I will find. Let me reconnect on the meeting. I am stopping my screen share so that we may have a better connectivity. Give me 1 or 2 minutes, right? I am reconnecting again after 1 or 1. I am just leaving it and doing it again so that we have. Hello. Let me share my screen with you. Do we have a clear voice now? क्या आपको मेरी आवाज सही आ रही है, ठीक आ रही है, पहले से ठीक आ रही है? ओके, आई हैव फाइन, वेरी गुड. लेट अस स्टार्ट. सो यहाँ पर v की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2p/m into t
स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी आंसर आपका सभी करेक्ट था। v इज इक्वल टू dx by dt, दैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2pm एंड स्क्वायर रूट t। अब अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम वैल्यू वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट t dt, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास स्क्वायर रूट t है, 2pm अपॉन m जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा, और t पावर में 1 ऐड करेंगे, t 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस k2 इज अनदर कांस्टेंट, जो कि हो सकता है हमारी इनिशियल पोजीशन हो जब t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाती है वो 2/3 स्क्वायर रूट 2p अपॉन m t टू द पावर 3/2 स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे, दैट वुड बिकम 8/9। सो 8/9 भी आपका आंसर आया था, दैट वाज आल्सो करेक्ट आंसर। k2 कांस्टेंट है, तो अगर इनिशियल पोजीशन 0 थी तो k2 की वैल्यू 0 होगी, और अगर इनिशियल पोजीशन 0 नहीं थी तो k2 की वैल्यू हमारी k2 भी रहेगी, और दैट वुड हैव सम डेफिनेट वैल्यू। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा, तो अगर समझ आ गया प्लीज से यस इन चैट सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि आप सभी को ये समझ आ गया। And let me move with to next question. Okay, Vikram, Snehi, Amarjeet, Pankaj has answered yes. Drishti, Tanmay, closed your video. Yes, I have closed my video so that we can have a better voice on net, because video takes some bandwidth. वीडियो भी कुछ बैंडविड्थ को बेयर करता है, तो उसको मैंने बंद कर दिया सो दैट यू हैव क्लियर वॉइस। और मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है, प्लीज सी माय स्क्रीन, राइट? ओके, सभी का आंसर यस आया, तो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है। अ चेन ऑफ मास m and length L lies on a horizontal table. The chain is allowed to slide down gently from the table. Neglect the friction air everywhere. और क्या फाइंड आपको करना है? आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट लीव्स। जो लास्ट जो चेन की पार्ट है, वो जैसे ही टेबल के कॉर्नर को लीव करता है, एट दैट टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ चेन। उस टाइम पर इस चेन की वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, प्लीज आंसर मी इन चैट एज यस। और सोल्व इट एट योर एंड, और मुझे इसका आंसर बताओ। आपको इस चेन की वेलोसिटी फाइंड करनी है जब ये चेन इस टेबल से जस्ट लीव किया, जैसे चेन ने टेबल के सरफेस को छोड़ दिया है, उस टाइम पर इस चेन की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। चेन की लेंथ L है और चेन का जो मास है वो m है। आपको फिगर में थोड़ा सा हिंट नजर आ रहा होगा, बट दैट वुड बी गुड फॉर यू। स्क्वायर रूट GL, स्क्वायर रूट GL आंसर आया है। लेट अस फाइंड आउट, अभी थोड़ी देर में फाइंड करते हैं कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है। राज शर्मा, दुर्गा, विक्रम, all of you has answered. I am waiting from others too. बाकी सभी लोग भी आंसर करें, सो दैट मुझे पता चले कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है और सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। रूट GL, स्नेहा has also answered. Vikram has also answered.
स्क्वायर रूट जी एल, बाकी सभी आंसर करें, मुझे लगता है कि इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। रूट जी एल, रूट जी एल, रूट जी एल, ओके, all of you are getting the right answer. Root GL is the right answer. Let us find out कि how can we get it. तो मुझे लगता है आप सभी का आंसर ये आ गया है, रूट GL। तो क्वेश्चन को मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लगता है सभी को आ गया है। अगर किसी को नहीं समझ आया क्वेश्चन या सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज वो मुझसे चैट में पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो पोजिशन है चेन की, इस पर केवल एक फोर्स लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और चेन जैसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है, वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन विल ऑलवेज बी जीरो, क्योंकि वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है टेबल के ऊपर। लेकिन जैसे टेबल से नीचे आती है, जो mg फोर्स है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉर्मल डायरेक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। यहाँ पर जब चेन अपनी फाइनल पोजीशन पर आती है, जो सेंटर ऑफ मास है चेन का वो L/2 डिस्टेंस नीचे होगा। तो या तो हम इंटीग्रेशन से वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करते हैं, या एक बड़ा सिंपल तरीका है कि सेंटर ऑफ मास का हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी के अंडर, और क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह ही बिहेव करता है, बड़ा नजदीक होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको ले लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2 मीटर से नीचे आया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू, और वर्क डन बाय ग्रेविटी वुड बी इक्वल्स टू mg L/2। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 वुड बी इक्वल्स टू mg L/2, which gives us the value of E as स्क्वायर रूट GL। अगर ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें एज यस, सो दैट आई कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरजीत हैज आंसर्ड, पूजा हैज आंसर्ड, स्नेहा, विक्रम, रिद्धि, ओके, ऑल ऑफ यू हैज आंसर्ड यस। ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो आई एम टेकिंग इट एज यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो लेट अस मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पॉइंट ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है, और वेलोसिटी और उसका जो माइन्यूट सा डिस्प्लेसमेंट होता है ds, दोनों ही उस फोर्स के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds एंड वेलोसिटी। तो वर्क अगर हम फाइंड करेंगे, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स F डॉट ds, तो ds और F दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो F डॉट ds वुड बी 0, और टोटल वर्क अपने आप को म्यूट करें। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0। सो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर किसी सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, हालांकि सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर हमेशा काम करता रहता है, बट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स at any instant or at any given for any span of time 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल भी है और बढ़िया भी है। क्वेश्चन है, हाफ kg बीड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से एक हाफ kg का बीड मूव करना शुरू करता है रेस्ट से, किसके इन्फ्लुएंस में? ऑन अ वर्टिकल प्लेन है, और ये हमारा क्वार्टर सर्कल है, अलोंग अ स्मूथ स्ट्राइट फाइन क्वार्टर सर्कल, रिंग ऑफ रेडियस 5 मीटर। ये 5 मीटर रेडियस का क्वार्टर सर्कल है, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन इधर काम कर रहा है, और ग्रेविटी इस पर काम कर रही है। तो यहाँ पर दो फोर्स लगे हुए हैं, कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन एंड अ ग्रेविटी। As shown, find out the speed of bead as it reaches the point B। ये जब पॉइंट B पर पहुंच जाता है तब आपको इसकी स्पीड फाइंड करनी है, कितनी स्पीड इसकी होगी। मास ऑफ द बीड हाफ kg है, दो फोर्स काम कर रहे हैं 5 न्यूटन एंड ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी आपको 10 लेना है।
You have to take acceleration of the gravity as 10. रेडियस 5 मीटर की है, वर्टिकल क्वार्टर सर्कल है, स्मूथ है बिल्कुल और फिक्स है। ये क्वार्टर सर्कल मूव नहीं कर रहा है। 2 फोर्स लगे हैं। जल्दी से सोल्व करो एंड शेयर योर आंसर इन चैट सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि आप सभी सोल्व कर रहे हैं। आंसर आया है अंकित का 10√2, स्नेहा also got the same answer 10√2. Pallavi also got, Raj Aryan, Durga also got. Okay, all of you got the right answer. Question simple है तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लगभग सभी को समझ आ गए। जल्दी से मैं आपको आंसर, अगर किसी को इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्सप्लेन चाहिए तो प्लीज आंसर मी इन चैट कि मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए सो दैट आई वुड एक्सप्लेन इट। अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्योंकि आप में से किसी ने भी पूछा नहीं है सोल्यूशन। ऑल ऑफ यू गॉट द राइट आंसर, तो आई एम टेकिंग इट एज यू नो द सोल्यूशन वेरी वेल, राइट। अगर किसी को पूछना है तो वो चैट बॉक्स से मुझसे पूछ सकता है एंड आई वुड एक्सप्लेन इट टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड दैट would be very good question for me। मेरे लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग से आपको चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन है सिस्टम शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में है जहां पर 2 स्प्रिंग है और दोनों ही स्प्रिंग कांस्टेंट के है। एक अपर ब्लॉक है मास m, एक सेकंड ब्लॉक है मास m, दोनों ही ब्लॉक्स का मास m है एंड ऑल द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चेंज इन द स्ट्रिंग टेंशन between 2 masses just after when one of the string is cut. Mass of the both blocks is m and spring constant of both the blocks. So ये blocks नहीं है, spring है। Spring constant both the springs is k। कब मैंने एक स्प्रिंग को यहां से कट किया और जैसे इसको कट किया उस टाइम पर जो टेंशन था यहां पर दोनों ब्लॉक के बीच वो चेंज हो गया होगा। तो आपको चेंज इन टेंशन फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट ए है, इक्विलिब्रियम में, इनिशियली इक्विलिब्रियम में था। जैसे ही स्प्रिंग को काट देंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ये टेंशन भी चेंज हो जाएगा। आपको चेंज इन टेंशन फाइंड करना है। अगर आप सभी को क्वेश्चन समझ आ गया तो स्टार्ट सॉल्विंग एट योर एंड एंड शेयर मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर एनी वन ऑफ यू is feeling problem to understand the question, ask me again to explain the question for one more time. Ankit has got answered, Sneha got answered, Rajajan also get answered, Vikram also got the answer, Nikshita got the answer, very good. Surprisingly every one of you got the right answer, I don't know why, but चलो बढ़िया है। इसका मतलब you have solved this question very correctly। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सर समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन नहीं आया, okay, so let me explain the solution of this question because some of you didn't get the answer. Let me show you the solution of this answer. Okay. Yes, here is the solution.
हमारा ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो ब्लॉक हैं दोनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया, तो दोनों का मास हो गया m+m 2m, और दोनों स्प्रिंग सेम उसके हैं, तो दोनों पर लेटर से इक्वल फोर्स है विच इज kx, तो 2kx ऊपर की तरफ लगा है 2f, और नीचे की तरफ 2mg है, तो यहाँ से हमें पता चलता है kx फोर्स ऑफ वन स्प्रिंग इज mg। तो इस केस में जो टेंशन है यहाँ पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो रेस्ट में है, तो टेंशन अगर T है तो T वुड बी इक्वल्स टू mg, तभी ये हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह पाएगा। तो इनिशियली टेंशन हमारा T है, और इनिशियली दोनों स्प्रिंग के बीच में फोर्स है kx, वेयर kx इक्वल्स टू mg। ठीक है, और जैसे ही मैं स्प्रिंग को कट कर देता हूँ तो सिचुएशन ये हो जाती है, स्प्रिंग तो उसी पोजिशन में रहेगा, तो फोर्स स्प्रिंग का उतना ही रहेगा mg। एक स्प्रिंग यहाँ से हट गया है क्योंकि उसको मैंने काट किया है, और एकदम से यहाँ पर टेंशन चेंज होकर T1 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों बॉक्सेस को मैं सिंगल सिस्टम लूं, तो जो स्प्रिंग है उसका फोर्स है kx इक्वल्स टू mg, नीचे की तरफ दोनों पर फोर्स लगा है 2mg, तो डेफिनेटली यहाँ फोर्स अनबैलेंस्ड है। तो ये जो बॉक्स है ब्लॉक, बोथ द ब्लॉक्स विल हैव एन एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन होगा वो डेफिनेटली नीचे की तरफ होगा, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है 2mg, ऊपर की तरफ mg है, तो नेट फोर्स होगा 2mg माइनस kx would be equals to mg and 2ma। हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया F equals to ma, that would give us acceleration of the box would be g/2। अब अगर मैं इस g/2 को इस बॉक्स पर अप्लाई करूं, T1 जो टेंशन है, mg नीचे की तरफ फोर्स है, एक्सेलरेशन है g/2, तो mg माइनस T1 जो कि नेट फोर्स होगा मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन g/2 है, तो T1 वुड बी इक्वल्स टू mg/2। अब यहाँ पर टेंशन हमारा आ गया mg/2, तो चेंज इन टेंशन फाइंड करते हैं, फाइनल टेंशन माइनस इनिशियल टेंशन T1 माइनस T, तो mg/2 जो हमारा T1 है, फाइनल टेंशन माइनस इनिशियल, तो चेंज इन टेंशन है माइनस mg/2। यहाँ पर एक बात ध्यान देना आप सभी, कई बार क्वेश्चन में पूछा होता है फाइंड आउट द चेंज इन टेंशन, और आंसर में माइनस mg/2 और mg/2 दोनों ऑप्शन होते हैं, उस केस में माइनस mg/2 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे चेंज इन टेंशन नहीं पूछा, बल्कि पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चेंज। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ऑलवेज वी हैव टू टेक द पॉजिटिव आंसर, तो जैसे ही मैं इस चेंज का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा आंसर आएगा mg/2। मेरे ख्याल से अब आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको घर पे ट्राई करना है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको घर पे ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर पे ट्राई करने के लिए, दिस वन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी आप घर पे ट्राई कीजिएगा। हालांकि अभी ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, और क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ऑल दीज कंप्लीट नोट्स विल बी शेयर्ड विद यू, तो ये आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा। तो मुझे लगता है आप सभी ने ये क्वेश्चन नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हमने अपने कुछ जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था वर्क पावर एनर्जी का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो अभी आपको अपने एंड पे क्या करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पास बुक्स हैं और जो एक्सरसाइज आपको और डीपीपी वगैरह यहाँ से भेजी गई है, वो सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। और अगर उनमें से कोई डाउट आता है आपके पास, डाउट के कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन डाउट को मुझसे शेयर कीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो आपके डाउट्स हैं। तो आज आपको मेरे ख्याल से सभी कुछ समझ आ गया आया होगा। अगर आपको सभी चीजें समझ आई हैं अच्छे से, तो आप प्लीज यस की आंसर मी इन चैट एज यस, so that I can close this class. Or if you have any doubt or a question, please ask otherwise. Nikshita, Sneha, Pooja, all of you. Okay.
I am closing this class. Goodbye. I am taking it as yes from all of you. हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, क्लास खत्म हो गई थी क्या? हाँ सर, अभी कहाँ क्लास ओवर हो गई थी सर। अच्छा, ओवर हो गई थी ना क्लास। एक्चुअली क्या है कि गलती से यहाँ पे स्क्रीन शेयर था तो क्लिक हो गया था, मैं दूसरा काम कर रहा था। तो क्लास नहीं ओवर कोई हो बात गई या नहीं, फिर सर मैं क्लास वापस? ओवर है, क्लास ओवर हो गई है एंड आई थिंक ऑल ऑफ सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो मैं भी क्लास को लीव कर रहा श्योर सर, श्योर। ओके। हूँ। ओके ओके। गाइस, बायो की क्लास के लिए प्रिपेयर रहना, 1 बजे से बायो की क्लास होगी। ओके। एंड वन मोर थिंग, जो जो अभी यहाँ पे ज्वाइन है, मेक श्योर कि आप लोग कमेंट्स में लिखते रहो। मैंने यहाँ पे म्यूट, आप अभी अनम्यूट नहीं कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है? कुछ भी होता है जस्ट आपको कमेंट्स में मेंशन करना है दैट आपको समझ में आया या नहीं आया है, ठीक है? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? समझ में आ रहा है सबको? गुड। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप जो अपना नाम लिख रहे हैं, मेक श्योर यू आर राइटिंग योर नेम, ठीक है? उसके बाद अपना बैच का नाम लिखो, ठीक है? उसके अंदर आपका फर्स्ट नेम भी रहेगा, उसके बाद बैच का नाम रहेगा। इट विल वर्क फॉर मी। जैसे कि स्नेहा है, स्नेहा, स्नेहल, इन सबको, पूजा, पल्लवी, आपको बैच का नाम लिखना है। हर्ष, आप सबको अपना बैच का नाम लिखना है। ओके देन गाइस, आप लोग नेक्स्ट जो बायो वाले बच्चे हैं वो 1 बजे की क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है? ओके, आप लोग लीव कर सकते हैं।